और Yes, अभी हम क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका क्या टेक है फ्लैट फुट पे। जैसे मैंने बताया कि आजकल दो ऑपोजिट्स yes, हैं। एक yeah, yeah. कहते हैं तो व्हाट डू यू फॉलो, कि अगर एकदम ही फ्लैट है या किस में आप आर्टिस्ट एडवाइस करते हैं, किस में आप कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए एंड ऑल दोस थिंग्स। Basically, sir, from our point of view, from the physio point of view, first we see it is a primary or secondary. Sometimes they have the secondary because they have the flat feet, but sometimes they develop like a secondary. They give the history कि हमारा पहले था but because of obese हो गए या हम्म। inactivity हो गया या यस। any pain हुआ, back pain हुआ, knee pain, after that उनका पैर ऐसा नहीं ऐसा हो गया. So हम्म। if the primary, yeah, if the cause is secondary, see, we always develop with the help of exercise. You can go for correction. यस। Underlying issue, underlying pathology is there, but with the help of exercise and strengthening exercises, mild it required some time. For the short duration we required correction, but from my I have seen so much cases. If it is a secondary cause, the chances are 90% they can get back to the normal arches in a ओके। short duration, like the 3 to 6 weeks or 3 months duration time. They can get the normal arches. And if the cause is the primary, if they have the flat foot from this birth or from 7 years or 8 years or from 9 or 10 years, so then in that case we'll ask him to go for this more of arch correction. And ओके। the arch correction was best till the age of 18 because till the bone is not fused. So in that case, if they have gone for the arch correction, some patients show a very good recovery if there's a growing child is there. But once they come around 22 or 23 or already totally, if the bones are grown, at that age that is become difficult to get corrected. But we can get corrected with this help of supports, arch support. In that case, we provide this arch support and get corrected, and they have to go for their routine, their running and everything. They can continue with ओके। the help of that. एंड अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क इज कि आप एक्सरसाइज कौन से एडवाइस करते हैं इसके लिए। Yeah, basically, sir, for this flat fit that we go for this toe curling exercises, clenching, intrinsic muscle exercises. After that, anterior tibialis, anterior leg muscles, and the same time we go for correction of this quadricep also, and the back extensors. तो इसमें से आपके कुछ एक्सरसाइजेस आपके ऑनलाइन इस पे है, आपके यूट्यूब चैनल पे है, सो YouTube, दैट yeah, पेशेंट्स कैन रिफर टू दैट। yes, yes, sir. YouTube से few exercises are there. ओके। That इसमें से एक best exercise is that the foot rolling. ओके। Yeah, foot rolling is the best. उनका क्या है कि एक best अपना bottle filled with water. They go for the deep freezer after once it's become hot, so they can go on rolling on that. ओके। Because of rolling, that will help to reduce the inflammation of the fascia, and at the same time that muscle get into the grade 2 to grade 3 strengthening exercise for this intrinsic muscles of the foot also. ओके। ओके। And the same time is due to the stretching of this all the foot also. ओके। And after that toe curling is that picking up the marbles and everything. यस यस यस, दो So that एक्सरसाइजेस। yeah, so that helps that much better in that cases. अच्छा, दूसरा आई वांटेड टू आस्क व्हाट इज योर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर फैट पैट फ्रिक्शन सिंड्रोम एंड पटेला टेंडिनाइटिस। So our treatment protocol for this patellar tendinitis first is the icing price protocol. After that we go for some modalities for the ओके। healing. So we go for the mostly ultrasound. If the sports person is, sometimes we use the laser, ओके। and after that rehab part. ओके। सो एनी So MFR, any instrument based release you do for fat pad friction? yeah, yeah, I have heard basically that fat pad friction syndrome, if you do instrument based release below the patellar tendon, it gives dramatic effects, and those instrument yes. where they are pointed ends and curved ends, you can release it just like a. Yes, sir. Yes, sir. So basically, that is the ISTM, Instrument Assisted Soft Tissue Yes. Mobilization. Yes. So we use that also. Okay. We use that for the facial release also, for the most basically ITB bands, ITB iliotibial band syndrome. In that release we use, and for the quadricep and hamstring. And this is works much better in like fat pad also. If we release the outer side, automatically the pain reduces drastically.
दैट्स व्हाट एक हफ्ते में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। मैं सीन पेशेंट्स, मैं इनफैक्ट पेशेंट्स हु आर नॉट वेरी विलिंग टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं बोलता हूँ कि आप अपने किसी भी बड़ी गाड़ी की चाबी से, बाइक की चाबी से टेंडन के नीचे उसको रब करना शुरू कर दें, इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। बेसिकली फैट पैड फ्रिक्शन सिंड्रोम में होता क्या है, बिकॉज ऑफ रिपीटेड इंजरी टू द फैट पैड इज कुशन ऑफ द नी, वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। अगर उसे हम रिपीटेडली इंजर होगा तो वहां पर स्कारिंग हो जाती है, तो एक्सकर्शन जो है पटेला टेंडन का और पटेला का चेंज हो जाता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन में। तो इंस्टेड ऑफ पटेला मूविंग सॉफ्टली इनटू द नी, वो की तरह इट कीप्स ऑन हिटिंग द फीमोरल कॉन्डाइल, और उसके वजह से पेन प्रोड्यूस होता है। एंड सीवियर। तो एवरी टाइम मैं जब नी पेशेंट देखता हूँ पेन के लिए, आई ऑलवेज टेंडर पाल्पेट द फैट पैड एंड आस्क द पेशेंट कि आपको पेन है। अगर टेंडरनेस है फैट पैड में तो इमीडिएट ओनली दिस exercise, I am instrument based release gets fantastic results. Otherwise they take 6 महीने लग जाता है इनको, अगर आप उस पर ध्यान ठीक करने के लिए 6 months लग जाता है ठीक करने के लिए। विद द फिजियो, यस विद द फिजियो रिहैब बहुत जल्दी अच्छा रिकवरी आता है। बट वो आते हैं बहुत जल्दी, बहुत लेट आते हैं। दे डू एवरीथिंग, सब जो हो गया फिर उसके बाद आते हैं। स्पेशली ऑनेस्टली में तो जैसे हमने आर्थोस्कोपी सर्जरी की है, तो आर्थोस्कोपी में तो हमें फैट पैड थोड़ा रिसेक्ट करना पड़ता है विजन के लिए। उसके बाद भी काफी कॉमन है फैट पैड, क्योंकि हमने उसको छेड़ा है तो थोड़ा फ्रिक्शन होना काफी कॉमन है। तो यू शुड बी वॉचफुल कि अगर पोस्ट आर्थोस्कोपी है, अगर आपके पास नी पेन हो रहा है तो इट कुड फैट पैड फ्रिक्शन कुड बी अ कॉज, या फैट पैड स्कैरिंग कुड बी अ कॉज ऑफ योर नी पेन। यस सर, एक क्वेश्चन था मिस आईटीबी बैंड को लेके। ओके, आईटी बैंड, सो आईटी बैंड इज वेरी कॉमन, काफी देखना रनर्स में काफी कॉमन है। सो बेसिकली वन ऑफ द कॉज इट इज बिकम्स टाइटनेस, become get tight very faster. If they will not go the stretching, if runner is there, he will not do the proper stretching, तो बहुत जल्दी IT bands syndrome develop हो जाता है। Yes. So sir, any chronic, if IT runners is there but he's having pains of 4-5 years, so any surgical intervention sir उसमें हम कुछ कर सकते हैं? दोनों पॉइंट्स पे बेसिकली बहुत कॉमन है हिप में भी IT बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम होना। बेसिकली IT बैंड निकलता है ट्रोकेंटर के ऊपर से पास होता है एंड नी में गर्डिस ट्यूबरकल पे जाके इंसर्ट होता है। एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अगर पेशेंट को पेन सिम्टम एग्जैक्टली लोकेटेड है IT बैंड फ्रिक्शन के वजह से, तो हम जैसे हिप में हो या नी में हो तो हम उसे ओपन करते हैं उस एरिया को, और उस एरिया से सिर्फ IT बैंड को हल्का सा रिलीज कर देते हैं, तो वो फ्रिक्शन कम हो जाता है जिस एरिया में। बेसिकली ये फिक्स बोनी पॉइंट्स पे जाके ही इफेक्ट करता है। यूजुअली हिप में ट्रोकेंटर के ऊपर है तो हम उसके नीचे का बरसा एंड थोड़ा सा IT बैंड वहां का रिसेक्ट कर देते हैं। एंड अगर नी में है, क्योंकि वो गर्डिस ट्यूबरकल पे है, तो वो लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल और लैटरल एपिकॉन्डाइल के पास से होके ब्रश करता हुआ नीचे जाता है, तो हम उस एरिया में उसे रिसेक्ट कर देते हैं। एंड IT बैंड एक बहुत ही फॉरगिविंग स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोसीजर्स हम उसे एज ए ग्राफ्ट यूज करते हैं, तो उससे उतना कुछ नुकसान भी नहीं होता है। उस एरिया का रिसेक्ट करके एंड थोड़ा सा वहां पर हम जैसे आप लोग ड्राई नीडलिंग करते हैं, वी जस्ट मेक सम बेयर एरिया सो दैट इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड पेन गोज अवे। इन वेरी सिलेक्टेड क्रॉनिक केसेस, जैसे आपने बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस MFR से और फोम रोलिंग वगैरह से दे डू वेरी वेल। सो अंटिल अनलेस यू हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस कि हाँ इसके वजह से ही पेन हो रहा है, अदरवाइज आपका वो प्रोसीजर फेल हो जाएगा। तो अगर आप श्योर हैं, यूजुअली क्लिकिंग साउंड्स फील होते हैं। एंड IT बैंड का क्या है, एक अटैचमेंट जिसे हम एक अटैचमेंट जाता है डिस्टल फीमर में, जस्ट बिलो द फ्लेयर ऑफ द नी, तो कैपलन फाइबर हम उसे कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वहां पर थिकनेस या टाइटनेस होने की वजह से वो जब नी बेंड होगा तो रिस्ट्रिक्ट होगा, तो हमें वो कैपलन फाइबर्स भी रिलीज करने पड़ते हैं। बेसिकली फीमर बोन से उसे हटाना पड़ता है रिलीज करके, सो दैट इट मूव्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन में थोड़ा सा पेन फ्री मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। और सर इसमें अपना that basically in patella tendinitis for surgery, no, if the patella tendinitis, if the patient is quite old, take 50 years 60 years, he has developed with the conservative we can manage also, but still they have the nagging pain. बहुत बार जो ओल्ड एज ग्रुप पेशेंट में पटेलर टेंडिनाइटिस का जो पेन है, इट इज बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। they develop patellofemoral osteophytes एंड आर्थराइटिस होने की वजह से जो जैसे मैंने बताया फैट पैड का हार्डली 0.5 mm का एरिया होता है, तो वो कंप्रेशन रिलैक्स नहीं हो पाता है, उसके वजह से पेन होता है। अनफॉर्चुनेटली आइसोलेटेड patellofemoral पेन के लिए वी डोंट डू मच सर्जरीज, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट ओल्ड पेशेंट्स में
इट इज नॉट गुड। वो हम टैकल करते हैं जब हम कोई नी आर्थराइटिस के लिए सर्जरी कर रहे हैं, टीकेआर या कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, उसमें हम उसको टैकल करते हैं। जो ओल्ड एज में पेन क्या होता है, जैसे कि नी में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं विद आर्थराइटिस, सिमिलर ऑस्टियोफाइट्स पटेला में भी बन जाते हैं। तो पटेला का जो इंफीरियर सरफेस है, जहां से पटेला टेंडन अराइज होता है, वहां पर ऑस्टियोफाइट्स बनने की वजह से जब नी बेंड होगा तो पटेला टेंडन सडनली हिट दोस ऑस्टियोफाइट्स एंड पेन होगा। तो बिकॉज वो बोनी ब्लॉक है, तो उसे बिना सर्जिकल रिमूवल के तो रिलीफ नहीं मिल सकता। बट कैसा है कि दिस इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसीजर कि हाँ उससे पेन चला ही जाएगा, क्योंकि इन पेशेंट में बाकी सारे फैक्टर्स भी काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस की वजह से ऑलरेडी कार्टिलेज पे लॉस है, तो उसे तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो पेन नहीं जाएगा। एंड बहुत बार पेशेंट्स हमें मतलब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेन आ कहाँ से रहा है, कार्टिलेज से पेन आ रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से पेन आ रहा है। जो ट्रिगर पॉइंट्स आप जो बोल रहे हैं उसमें वी कैन गिव सम लोकल इंजेक्शन। हमें स्टेरॉइड इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि दे वीकन द टेंडन एंड they might rupture, lead to rupture of, we have seen lot of patients where टेंडन में रिपीटेड इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और उससे रप्चर हो सकता है टेंडन। सो इट इज अ वेरी हजार्डस थिंग टू डू। सो जो अगर इंजेक्शन होता भी है तो इट कुड बी मे बी योर ड्राई नीडलिंग कुड वर्क। नीडलिंग से हम उस एरिया का लोकल ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर सके एंड पेन चला जाए, अदर देन गोइंग फॉर सर्जरी। तो अगर पेशेंट को बाकी कुछ आर्थराइटिस का इतना कंप्लेंट नहीं है, जैसे मीडियल कंपार्टमेंट या लैटरल कंपार्टमेंट नॉर्मल है, तो मैं जहां तक हो सके इसके लिए सर्जरी नहीं करना चाहूंगा। आई वुड गो फॉर आइदर इंस्ट्रूमेंट बेड रिलीज और अपना ड्राई नीडलिंग और समथिंग एल्स। या बहुत बार उसमें एक छोटा सा पतला पटेलर स्ट्रैप आता है, इंफीरियर स्ट्रैप आता है, जिसे हम बांध दें। yes, जब जिस एक्टिविटी में आपको पेन होता है वो पेन होना बंद हो जाएगा। बेसिकली वो स्ट्रैप सारा लोड ले लेता है, पटेलर टेंडन स्ट्रैप जिसको हम कहते हैं। एंड द मोमेंट यू आर डन विद द एक्सरसाइज यू कैन जस्ट रिमूव द स्ट्रैप एंड कीप इट असाइड। उसे हम पूरा टाइम नहीं बांध सकते क्योंकि वो बहुत टाइट होता है, आपका कॉमन पेरिनेल नर्व इंजरी हो सकती है या फुट ड्रॉप हो सकता है। तो जब भी आपको कोई एक्टिविटी करनी है और आपको उसमें पेन है, तो आप वो स्ट्रैप बांध के आप वो एक्सरसाइज करिए। तो वो स्ट्रैप से क्या होगा कि पटेला थोड़ा डिकम्प्रेस हो जाता है, पेन चला जाता है एंड यू कैन कैरी ऑन विथ योर वर्क। And from second, sir, from the supplementation point of view, it's like runner's knee. So what they have to take precautions for, like vitamin D, calcium, multivitamin or vitamin C, because synovial fluid is because of everything hyaluronic acid. And what are they should good for the high good loading to get the good healthy knee joint? Because the runners knee, they are the very enthusiastic और काफी सारा उनको भागना रहता है. It's not like 5 years, 10 years. So for that, what they can do? It's a very good question. Basically, क्या हुआ है कि अब it's a form of exercise. So like every exercise, many people tend to take protein, protein shakes and all that to keep their body healthy. But what happens many times, this exaggerated protein intake leads to high uric acid, which I've seen very commonly in practice. Uric acid is a one thing which when increases tends to inflame the joint. एक तो इन्फ्लेमेशन होता है, दूसरा इट टेंड्स टू ईट अवे द कार्टिलेज इरोड करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई यूरिक एसिड इज नेवर डिजायरेबल। तो अगर आपको हाई यूरिक एसिड है तो आपके प्रोटीन इंटेक पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इट इज अ साइन दैट योर बॉडी इज नॉट रिक्वायरिंग दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन स्पाइट ऑफ योर एक्सरसाइजेस, इट इज गोइंग वेस्ट। तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वो मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाता है। एंड इफ यू फॉलो प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, देन आगे उसको कोई और मेडिसिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस पेशेंट्स का जेनेटिक ट्रेट है कि हाई यूरिसीमिया का। देन जैसे हमें मेडिकल, जैसे हम बीपी के लिए मेडिसिन देते हैं या शुगर के लिए मेडिसिन देते हैं, हमें यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए एक लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चालू करना पड़ता है। दूसरा पार्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में विटामिन डी इज अ रियलिटी। सबको एवरी 6 मंथ में मुझे लगता है कि 1 महीने का कोर्स कर लेना चाहिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर 3 मंथ तक विटामिन डी का कोर्स करना चाहिए वंस अ वीक। एक बार वो नॉर्मल हो जाए, फिर एवरी 6 मंथ्स यू कैन टेक 1 और 2 मंथ्स का डोसेज एंड फिनिश इट ऑफ, सो दैट आपका विटामिन डी कभी लो ना हो। विटामिन डी लो होने की वजह से बोन पेन, एक पेन, आप विटामिन डी इज नॉट अ विटामिन, इट्स नाउ कंसिडर्ड अ हार्मोन फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। आप अभी कोविड टाइम में भी सुन रहे हैं कि आप विटामिन डी लीजिए उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ हार्मोन नाउअडेज rather than a vitamin, very essential hormone. So its normalcy is a very important part in our lifestyle. So उसका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। उसके साथ जो पेशेंट्स जो मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि इनमें कॉन्ड्रल डैमेज है या कार्टिलेज का इशू है, तो उनमें मैं कॉन्ड्रो सपोर्टिव मेडिकेशन चालू कर देता हूँ। ग्लूकोसामाइन जो कॉमनली बहुत कॉमन है। वी हैव फाउंड दैट it is actually sold in US as a nutraceutical, मतलब it is not a drug, it is a multivitamin supplement.
बट इट वर्क्स वंडर। मतलब अगर कार्टिलेज इशू है तो आप कोई भी ग्लूकोसामाइन वगैरह बेस्ड मेडिसिन देंगे, लॉन्ग रन में इट इज वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द कार्टिलेज। सो दिस थ्री थिंग्स, वन इज कंट्रोल ऑफ यूरिक एसिड सो दैट योर प्रोटीन इंटेक शुड बी टेकन केयर ऑफ। दूसरा विटामिन डी, जैसे आपने बताया, विटामिन सी इज आल्सो वेरी गुड हीलिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट। इनफैक्ट मैं सारे टेंडिनाइटिस पेशेंट्स में विटामिन सी इमीडिएटली स्टार्ट करता हूँ। हीलिंग प्रमोट करता है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेसेस, सारा इन्फ्लेमेशन चला जाता है। एंड इट इज टेंडन प्रोटेक्टिव, टेंडन का जो न्यूट्रिशन है वो विटामिन सी से जनरेट होता है। एंड लास्टली अपना ग्लूकोसामाइन काइंड ऑफ कोई सप्लीमेंटेशन अगर हमें लग रहा है कि इसमें बोनी कंपोनेंट है, जैसे आपने बताया 50-60 इयर्स ओल्ड पेशेंट है तो चांसेस ज्यादा है कि उन्हें कॉन्ड्रल डैमेज होगा। थोड़ा बहुत रिलीफ 20-30% जितना भी हमें मिल जाए डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, वी कैन ऑलवेज गो फॉर फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट। और any sir calcium support, calcium or hydration? Calcium, I personally believe कि calcium is not required as such unless you are in osteoporosis. Osteoporosis usually happens very late in the age. Young patients can regulate their own calcium. Basically ये calcium जो regulation है ये vitamin D का काम है. It acts like a hormone. So if your vitamin D is low, then what happens? Calcium जाता ही नहीं है bones में, and because of that you will have pain. But if your vitamin D is normal, that calcium is put in the bone by vitamin D. So you always have calcium stores, like you always have calcium by your food or something like that. It is the vitamin D which makes the difference of putting it into the bone and not. So during vitamin D therapy you can give calcium, but otherwise I don't give calcium regularly because उससे acidity काफी ज़्यादा होती है. And it is not required per se in younger population. It is required only in osteoporotic people. वो भी अगर diagnosed deficiency है तो otherwise calcium is regulated very nicely by the body itself. It's an auto-regulated hormone with millimeters, because calcium and potassium दो ऐसी चीजें हैं जो body एकदम micro levels पे regulate करती है. We cannot go into the body doesn't allow us to go into hypercalcemia. You know, it's a dangerous situation, or hyperkalemia. So body automatically regulates it. So only you need is correct dose of vitamin D, and then it takes care अपने आप. Instead of that calcium, we can support give glucosamine and get better results. And the same hydration also, sir. Yes. During running you should be hydrated. एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक एक्सरसाइज मैंने शायद से एक टॉक में बताया था कि वी टेक ग्लूकोज इन ग्लूकॉन डी जैसे टू, इट इज अ वेरी बैड हैबिट. उससे क्या होता है कि मसल को इमीडिएट न्यूट्रिशन की आदत पड़ जाती है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग. उससे एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है मसल्स का, ग्लाइकोजन स्टोर्स नहीं बन पाते मसल्स में. आप डायरेक्टली ग्लूकोज ले रहे हैं एंड इमीडिएटली इट गेट्स सर्कुलेटेड. आई रेड समवेयर उससे अच्छा कि आप सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट लें, so that your electrolyte imbalance doesn't happen. Electrolyte imbalance सबसे common cause है muscle cramps का, जो night cramps वगैरह होते हैं रनर्स वगैरह में. It happens because आपने बहुत ज़्यादा sweating की, बॉडी से सारा salt drain हो गया, आपने salt नहीं लिया, and उसके वजह से तो lemon, salt and because salty water is a bit difficult to drink, तो हम एक salty नींबू पानी टाइप्स बना के हम अगर उसे रखें तो it is a much better drink than a glucose drink, much healthier drink than a glucose drink. We should not get into the habit of taking glucose while exercising, क्योंकि बाद में क्या होगा, when it is not there, muscles will tend to, you know, भूख बढ़ जाती है muscles की एक तरीके से, and they are conditioned that way कि immediate glucose मिलेगा and we will start running again and again. तो मतलब काफी लोगों को ये they become like habituate कि after that exercise they require कि मतलब वो चाहिए कुछ something. Yeah. In fact ये जो प्रोटीन शेक्स हम लेते हैं एक्सरसाइज के बाद, they are actually to be said to be taken within 15-20 minutes immediately after the exercise, so that there is maximum absorption of proteins directly into the muscle. Immediately after exercise क्या होता है, muscle is torn off, या हर एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत मसल की टेयर होती है. So at that point of time the muscle blood supply is also maximal. जब जैसे आपने एक्सरसाइज किया है, तो people who promote taking protein shake, they say कि immediately 15-20 minutes after exercise, if you take this protein shakes, they are amino acid based shakes, they directly go into circulation and directly are available for the muscles to get healed or repaired. So whatever I've read, glucose is absolute no. Whatever you can take is either protein shake, that is after the exercise, not during the exercise. आप रन करके आए, cooling down phase में बैठे हैं, तब आपने लिया, and during the running or during the exercise, lemon water with salt.
so that you don't end up with hypoelectrolytemia and you don't end up with muscle cramps. आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जब क्रिकेटर्स खेलते हैं, Dr. Ajay, can you hear me? I think we have lost Dr. Ajay for a while. So even if we during cricket, you see the cricketers taking those salt tablets. That is to maintain the electrolyte balance in the muscle and avoid muscle cramps later on. In fact, if they have those hamstring cramps, if you see immediately somebody comes outside from the dugout and gives them those salt tablets, because you sweat so much, your salt is lost, and that has to be replenished during the exercise.